So, in the morning class, we were discussing about the vision of one like Son of Man who was presented before the Ancient of the Days. And the Ancient of Days gives all the authority and dominion over the entire earth to this Son of Man. And we were looking at the meaning of this vision also. What is the meaning of the one like Son of Man? It is the holy people of God. It is the holy ones of the Most High. So in vision, it is symbolically told as one like Son of Man. There is a shift in the symbol. When talking about the kingdoms and kings, it was told in the symbol of wild animals. Coming to the fifth kingdom, which will be there forever, it is talking in human terms. It is like human being. It is like one like Son of Man. And when the angel is explaining the meaning of vision to Daniel, the angel is telling to the Daniel that this Son of Man is, what is that? It is the people of God. What is the Lord going to do? The Lord will fight with the horn which speak arrogantly, the 11th king of the fourth kingdom. And God will kill and destroy that king and kingdom, and he will give the rule to his own people. And his people, the holy people, they will reign forever. That kingdom will not end. That was the vision. And we were talking that the Son of Man is Israel, or the holy people of God. But coming to the gospel and in the New Testament, it is told that the Son of Man is Jesus Christ. So how can we understand this thing? Daniel, the Son of Man is Daniel, the Son of Man is Israel, or the holy people of God. And coming to the New Testament, Jesus Christ is told as the Son of God. So how to understand this? हम दानियल की किताब देखते समय 7:13 में जो मनुष्य के पुत्र के जैसे जो दिखाई दिया, उसको क्या करके स्वर्गदूत बताते हैं, उसका अर्थ क्या है? वो परमेश्वर का संत लोग हैं। पर नया नियम गॉस्पेल्स में, विशेष करके चारों सुसमाचार में और पत्रियों में, यीशु मसीह को सन ऑफ मैन करके या मनुष्य के पुत्र करके बुलाया है। तो ये दो बातों को कैसे समझना है? एक तरफ इसराइल को या परमेश्वर के लोगों को सन ऑफ मैन बताया गया है, या परमेश्वर का या मनुष्य का पुत्र बताया है। दूसरे तरफ यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र या मनुष्य के पुत्र करके बताया है। उसको समझने के लिए हम एक बात ये समझना है, क्यों परमेश्वर इसराइल को क्यों बुलाया? इसराइल को जब परमेश्वर ने बुलाया, इसराइल को क्यों बुलाया? When God, first thing we need to understand is what was the calling of Israel. When God chose Israel, the people of Israel, what was their calling? Why did God chose Israel as his people? What is the purpose behind it? When we understand the purpose behind the calling of Israel, then at the end we will understand that Israel failed to fulfill that purpose and calling. जब हम इसराइल का इतिहास देखते समय परमेश्वर क्यों इसराइल को बुलाया, या परमेश्वर क्यों इसराइल को अपना लोग करके अपनाया, क्यों परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब और उनकी संतान को अपने लोग करके क्यों बुलाया और अपना बेटा कहा है इसराइल को, कई जगहों में हम पढ़ेंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर के लिए एक मकसद था, उनका बुलाहट के लिए एक क्या है, एक लक्ष्य था परमेश्वर का। पर हम इसराइल का इतिहास देखते समय इसराइल ये लक्ष्य पूरा करने में या ये मकसद पूरा करने में हार गया। मतलब जब यहूदी लोग जब बंधुआई में जा रहे थे बाबिलोन में, उधर परमेश्वर बोल रहा हूँ, मैं इनको क्या कर रहा हूँ, मेरे सामने से हटा रहा। मतलब जो देश परमेश्वर इसराइल को दिया था, उस देश से परमेश्वर इनको बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोग पाप कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं। कितना भी बोलो, लोग सुनते ही
नहीं, उधर परमेश्वर का योजनाओं को पूरी करने में इसराइली लोग हार गया. Israel failed to fulfill the purposes of the Lord in their life. They were a rebellious people according to the books of prophets. God sent so many prophets to them, but they did not hear. They rebelled and they rejected the Lord. So the exile is a kind of rejection of his people by God. God is rejecting his people for a temporary time when he sent the people to exile. परमेश्वर जब इसराइल को बंधुआई में भेजा, यहूदी लोगों को बंधुआई में भेजा, वो परमेश्वर का एक तरह का उनको त्यागना है. परमेश्वर अपने लोगों को कुछ समय के लिए त्यागा और दूर किया. So when we look at those things, we will read some verses. When Israel was called, God calls Israel his son. We can read Exodus chapter 4:23. Exodus chapter 4:23. Someone can read. God calls Israel his son when he called Israel out of Egypt. And I said to you, let my son go that he may serve me. If you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn son. Yes. So God is telling to Moses, go and tell to Pharaoh, command Pharaoh, let my son go, that he may serve me. मेरा हिंदी में क्या लिखा है 4:23 में? और मैं हाँ, जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे. मेरे पुत्र को जाने. ये पुत्र कौन है? Israel. When God wanted to deliver Israel from Egypt, God is telling to Moses, Israel is my son. Israel is my firstborn son. So when in the beginning itself, when God called Israel out of Egypt, what was the name given to Israel by God? He is my son. इसराइल को अपना पुत्र करके, इसलिए फारो से ये बोलने के लिए कह रहा है, मेरे पुत्र को जाने दे. My son. So son of God was not a title that was newly used for Jesus Christ. Before Jesus Christ, son of God was used for Israel. Israel was the son of God. And coming to the New Testament, we see Jesus as the son of God. In Old Testament, Israel is the son of man. Coming to New Testament, Jesus is the son of man. We will see why it is like that. So Israel was called as the son of God. We will see one more verse, Hosea 11:1. Hosea 11:1. Hosea 11:1. And When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my sons. Yeah, Hindi also. यह सुनकर हारोस के राजा याकीन ने मादोन के राजा याबो और सिम्रोन होशिया 11:1. यह सुनकर हाँ जब इस्राएल बालक था हाँ. मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया. इसराइल के बारे में परमेश्वर ये बोल रहा है, मैं अपने पुत्र को मिस्र से. When Hosea talks about the exodus of Israel, God says, I called my son out of Egypt. So God is calling Israel, the people of Israel, as son, my son, son of God. So Israel has this title, this name called Son of Man in Old Testament. And why? So Israel, who is Israel? Israel is son of God. And why they are called? Why God made them the people? Because there were a lot of nations in the world. In this world, in this earth, on this earth, there were many people, many nations, many languages, many people groups. But why God chose Israel? There is no answer. There is only one answer, that God chose. Means उनको उसको ऐसा चुनने में क्या है?
हाँ, वो ऐसा चुना, ऐसा चुनने में उसको पसंद आ गया. He just chose because he chose. He loved to choose Israel because nothing else. God loved Israel and he chose Israel. So that's the answer. There is nothing else. There is no specialty for people of Israel. But God loved them and chose them. God loved to choose them. That is the only answer. And why God chose them? The purpose of their calling. Why God made Israel as his own people. The purpose of their calling is written in Exodus chapter 19, 5 to 6. इसराइली लोगों को परमेश्वर अपना लोग करके बुलाने के लिए, अपना लोग बनाने के लिए एक मकसद था. उस मकसद के बारे में लिखा है निर्गमन की किताब 19 का 5 से लेकर 6 तक. कोई पढ़ सकते. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोग में से तुम मेरी मेरा निज दल ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे. जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है. बस. So if you read 19 verses 5 to 6, it is written, Now therefore if you obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession. Treasured possession. Israel को परमेश्वर, what is the Lord calling Israel? Israel is my treasured possession. Treasured possession का मतलब हिंदी में क्या लिखा है? निज धन. मतलब पूरे दुनिया में सारे लोगों के बीच में इसराइल परमेश्वर के लिए एक विशेष धन होगा या एक निज धन होगा या बहुत ही बहुमूल्य एक, सारे जातियों के बीच में इसराइल परमेश्वर के लिए एक विशेष और बहुमूल्य जाति के रूप में, जैसा एक खजाना है, बहुमूल्य खजाना है, एक निज बाग या एक निज धन करके परमेश्वर इसराइल को बुलाया है. कब इसराइल एक निज धन या एक बहुमूल्य, परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य खजाना बनकर कब रहेंगे? सिर्फ जब इसराइली लोग परमेश्वर का बात मानेंगे, तब इसराइल परमेश्वर के लिए एक निज धन, एक बहुमूल्य खजाना या बहुत बड़ा एक संपत्ति के, एक विशेष संपत्ति के तरह रहेगा. When God called Israel, God calls them a treasured possession. And when will Israel become a treasured possession? Only when Israel will obey the Lord. Only when Israel follow the covenant, Israel will be a treasured possession. Means a special people among all other nations and peoples. There are some more things that Lord is telling to Moses. Indeed, the whole earth is mine, but you shall be for me a priestly kingdom and a holy nation. God is telling Moses about Israel. Israel is for me a priestly nation and priestly kingdom and a holy nation. इसराइल के बारे में परमेश्वर बता रहा है, इसराइल मेरे लिए क्या है? क्या है? हिंदी में क्या लिखा है? प्रीस्टली किंगडम के लिए. इसलिए और यदि तुम निश्चय मेरी मानो और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोग जैसे तुम भी मेरा निज धन ठहरोगे. समस्त पवित्र मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे. तो याजकों का राज्य और पवित्र जाति, दो शब्द इसराइल के लिए, उसका परमेश्वर का बुलाहट का मकसद के बारे में दो शब्द, दो नाम परमेश्वर इसराइल को दे रहा है. एक याजकों का राज्य और पवित्र जाति. ये क्या है? When Israel was called by God, God calls them priestly kingdom and a holy nation. This was the name given to Israel when God called them out of Egypt. What is the meaning of priestly kingdom and holy nation? Priestly kingdom means, what is a priest? What is the duty of a priest? Priest is a person who stands in between man and God. What was the role of a priest in Israel?
if people want to offer prayer and sacrifices, they will bring their sacrifices to the temple, and priest will stand as a mediator, and it is through priest the people give their prayers and offerings to the Lord. So the priest stand in between God and other people. So it's like a मध्यस्थ, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक याजक का ड्यूटी क्या है? लोग और परमेश्वर के बीच में खड़े होते हैं। अगर लोगों को प्रार्थना करना है, बलि चढ़ाना है, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना है, तो पुराना नियम में यहूदियों के बीच में क्या करते हैं? उन लोग मंदिर में लेके आता है। लोगों के लिए कौन चढ़ाता है? याजक लोग चढ़ाता है। उसका मतलब बिचवाई कर रहा है, मतलब मध्यस्थ के रूप में याजक काम कर रहा है। तो इस्राएल बाकी जातियों के बीच में परमेश्वर के लिए क्या बनेगा? पूरा इस्राएल का जो देश परमेश्वर के सामने पूरे दुनिया के लिए एक याजक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो व्हाट वाज द कॉलिंग ऑफ इस्राएल? व्हेन गॉड कॉल्ड इस्राएल, the entire nation of Israel all together, all people of Israel together, Israel as a nation was chosen as a priest for the whole earth. So बाकी सारे जातियों के बीच में, बाकी सारे दुनिया के लोगों के बीच में इस्राएल जो देश को एक याजक के रूप में, इस्राएल के अंदर जो लेवी जो याजक, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, पूरा इस्राएल को पूरे दुनिया के लिए एक याजक के रूप में रखा है। मतलब परमेश्वर और बाकी जातियों के बीच में कौन खड़ा है? इस्राएल खड़ा है। बाकी जातियों को अगर परमेश्वर को देखना है तो किसके द्वारा देख सकता है? इस्राएल के द्वारा देख सकता है। और परमेश्वर का आशीष बाकी लोग पाना है तो किसके द्वारा पाना है? इस्राएल के द्वारा। मतलब इस्राएल बाकी देश और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में खड़ा है। यह है याजकों का राज। पर इतिहास हम देखते समय ये भूमिका निभाने में इस्राएल हार गया। When we check the history of Israelites, they were called as a priestly nation who stands between nations and God. If nations want to approach God, if nations want to see the one and true God, they want to see God through Israel. They will only experience God through Israel. And if God want to bless nations, it is also through Israel. So Israel was the channel between God and the rest of the world. तो इस्राएल परमेश्वर और बाकी दुनिया के बीच में एक जरिया के जैसे परमेश्वर रखा। वो है प्रीस्टली नेशन। व्हाट इज द अनदर वर्ड? होली, प्रीस्टली किंगडम एंड होली, परमेश्वर का पवित्र जाति। मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। पवित्र का मतलब क्या है? अलग किया है। पवित्र करके जो शब्द का असली अर्थ यह है अलग किया, किसी एक मकसद के लिए। तो परमेश्वर के लिए विशेष करके अलग किया लोग है इस्राएल। इसलिए इस्राएल परमेश्वर का नियम माना है, परमेश्वर का विधियों का मानना है, परमेश्वर का रास्ता पर चलना है। तब इस्राएल परमेश्वर के लिए एक पवित्र, परमेश्वर के लिए, अपने महिमा के लिए, अपने नियमों के लिए अलग किया हुआ लोग करके ठहरेंगे। Israel was called as a holy nation. The word holy means it is separated for God. Israel was a special people separated for the glory of God, to obey God, for God to reveal His glory and presence in the world. Israel was like a channel. So this is the calling. परमेश्वर इस देश को बुलाने का मकसद यह है बाकी लोगों के बीच में परमेश्वर के काम और महिमा और नियमों को प्रकट करने के लिए एक जाति, ताकि दूसरे लोग इस जाति को देखते समय परमेश्वर को जाने पाए। तो इस्राएल वाज कॉल्ड लाइक ए प्रीस्टली नेशन, इस्राएल वाज कॉल्ड लाइक ए चैनल, इस्राएल वाज कॉल्ड
as people of God, that other nations, other people may see Israel and know the true God. When others look at Israel, they should know Israel's God is the one and only God, the God of heaven and earth. So this is the calling, this is the purpose with which God called Israel. ये इस मकसद के साथ इसराइल को परमेश्वर बुलाया था. We'll just read Isaiah chapter 42 verse 6. Isaiah chapter 42 verse 6. यशायाह नबी का किताब 42 का 6. Verse 6. I am the Lord, I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nation. इसराइल के लिए क्या बताया गया है? ये जातियों के लिए क्या है? एक ज्योति के रूप में इसराइल का एक नाम इधर दिया गया है, लाइट टू द, पूरे जगत के लिए, पूरे दुनिया के हर एक जाति के लिए एक क्या है? लाइट के तरह. क्या है? हिंदी पढ़िए. मुझे यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरा हाथ, ये यू, हु इज दिस यू? ये तेरा, ये कौन है? इसराइल को बोल रहा है. हाँ. तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वांछा और जातियों के लिए प्रकाश देना। तो जातियों के लिए प्रकाश. So if the nations who are in the darkness, if they want to see light, Israel should be that light. Israel should reflect the light of God to the nations. अगर जो जातियां जो अंधकार में है, अगर उन लोग परमेश्वर का ज्योति या प्रकाश में आना है, तो इसराइल है जरिया. इसराइल को देखते समय परमेश्वर का प्रकाश जाति जाति के लोग पाएंगे. पर इतिहास में क्या हम देखते हैं? इसराइल खुद अंधकार बन गया. When we look at the history, Israel failed to do this duty to become light to the nation. How Israel will become light to the nation? By obeying the word of God. They will become a light to the people in darkness. By obeying the law of the Lord, Israel will reveal the true God through their nation. But when we check the history, Israel itself become darkness. So what the Lord is doing? So when we look at the history, Israel failed in their calling. जब हम इतिहास देखते समय इसराइल अपना परमेश्वर उनको उस इसराइल को बुलाने का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, उसमें हार गया. तब परमेश्वर क्या कर रहा है? There are some verse which says God is doing a new thing. God is bringing a new Israel. Who is that new Israel? It is Jesus Christ. The literal Israel, the people of Abraham, the children of Abraham failed. The literal children, the original descendants of Abraham failed to fulfill the plans and purposes of God. So God is raising one man from the descendant of Abraham, son of David. Then he is making that person as the new Israel, and those who believe in that person, who is Jesus Christ, they are the new Israel. I hope you understood. So Jesus is representing the new Israel. We will read some verses how God is bringing a new Israel out of his people who disobeyed him. हम जरा देखेंगे परमेश्वर कैसे एक नया इसराइल को उत्पन्न कर रहा है उस पुराना इसराइल के अंदर से. If we read Isaiah chapter 5 verse 5 to 7, please read Isaiah chapter 5 verse 5 to 7. यशायाह नबी का किताब 5 अध्याय 5 का 5 से लेकर 7 तक. And now I will tell you what I will do to my vineyard. I will remove its heads, and it shall be devoured. I will break down its wall, and it shall be trampled down. I will make it a waste. It shall not be bronze or wood, and bread and thorn shall grow up. I will also command the clouds that they
ran openly. Yes, enough. So fifth chapter is a song sung by prophet Isaiah. It is about a song. It is a song of lament. Means परमेश्वर का जो विलाप, परमेश्वर इसराइल का या परमेश्वर अपने लोग यहूदा का जो जिंदगी देखते हुए, लोगों का जिंदगी देखते हुए बहुत दुखी है, और परमेश्वर का दुख का एक गीत कौन गा रहा है? यशायाह भविष्यवक्ता। उस गीत में इसराइल को या परमेश्वर के लोग यहूदी लोगों को किस चिन्ह के द्वारा बताया है, किसके साथ तुलना किया है? दाखलता का। परमेश्वर एक दूर देश से एक दाखलता को लेकर आया और क्या किया? एक अच्छा बगीचा बनाकर उसमें लगाया, और उस दाखलता को बढ़ने के लिए जो कुछ चाहिए, गात हो या पानी हो, अच्छा जमीन हो, जो कुछ उस दाखलता को बढ़ने के लिए, फूलने के लिए, फलने के लिए जो कुछ जरूरी था, परमेश्वर सारा सुविधा कर लिया करके। ये पूरा अध्याय आप लोग बाद में पढ़कर देख लीजिए वो गीत। दिस इज अबाउट इसराइल, हाउ गॉड टुक केयर ऑफ इसराइल, हाउ गॉड डिड एवरीथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ इसराइल। अगर हम 5 अध्याय पढ़ते समय ये इसराइल के बारे में या परमेश्वर के जन यहूदी लोगों के बारे में एक परमेश्वर का दुख का गीत, एक विलाप गीत है। उधर क्या हो रहा है? इसराइल को एक दाखलता के साथ तुलना किया है, एंड उस दाखलता को बढ़ने के लिए जो कुछ जरूरी था परमेश्वर प्रावधान किया, उसके बावजूद क्या है? ये जंगली फल लेके आया। अच्छा फल लेके आना था। ये दाखलता में अच्छा फल क्या है? फलना था, पर वो जंगली फल लेके आया। सो व्हेन वी रीड दिस 5th chapter, it is a song of lament. God is very disappointed about his people. He is crying. He is very sad about the people of Judah. What happened? In this song, the people of Judah is compared to a wine branch. God has brought a good wine from a far land and he placed it in a garden. He prepared a very good garden. He planted this wine in that garden. He provided every facility for the growth of this wine, that he expected that this wine will grow, this wine will flower in its season and it will give good fruit. But at the end, what happened? God was expecting a good fruit and a good harvest from this wine, which is Judah. But at last what happened? They gave wild fruits. Wild means जंगली, मतलब परमेश्वर जो कुछ उनके लिए करना था किया है। जब इनको मिस्र से लेके आया उस समय से लेकर इस देश के लिए जो कुछ परमेश्वर करना है सब कुछ किया है, पर आखिर में इनका काम कैसा था? पाप था। इनसे अच्छे काम, धार्मिकता का अपेक्षा किया था, पवित्रता का अपेक्षा किया था, पर अंत में क्या है? इन लोग पाप किया, बलवा किया और दुष्टता में पड़ा है। God was expecting the fruit of holiness, the fruit of righteousness, the fruit of obedience, the fruit of faithfulness from his people, because he did everything that he could for them to grow and give good fruit. But at last, these people gave wild grapes, wild fruit, which is wickedness and sin and rebellion. They became unfaithful. So what the God is going to do? That's what we read. What the Lord is going to do with his vineyard. 5 का 5 से लेकर, when we read verses 5, and now I will tell you what I will do to my vineyard. Vineyard means उस दाख की बारी. So what I will do with my vineyard? I will remove its hedge. Hedge means जो चारों तरफ जो दीवार जैसे बनाया है उसको तोड़ दूंगा। दीवार क्यों बनाया था? ताकि कोई जंगली जानवर या कोई जानवर अंदर आकर या इंसान कोई भी अंदर आकर नाश ना करे। अभी इसका क्या है? 4 दीवारी जैसे जो बनाया है हेड्ज को, है, ताकि जिसको आकर खाना है, मतलब उसको दुश्मन के हाथ में दे रहा है।
एंड इट शैल बी डिवोर्ड, मतलब जंगली जानवर आकर उसका खा जाएंगे, मतलब बंदुआई के बारे में ही। आई विल ब्रेक डाउन इट्स वॉल, उसका चार दीवारी को मैं तोड़ दूंगा। इट शैल बी ट्रैम्पल्ड डाउन, उसको कुचला, दुश्मन उसके ऊपर कुचलेंगे। वर्स 6, आई विल मेक इट ए वेस्ट, बर्बाद करूंगा इस, क्योंकि परमेश्वर अच्छे फल को अपेक्षा किया पर मिला जंगली फल। गॉड वॉज एक्सपेक्टिंग गुड फ्रूट बट it bore wild grapes, wild fruit. Because of that, God will make it a wasteland. God is going to destroy that garden. It shall not be pruned or hewed. Pruned मतलब जो क्या है, हाँ जाड़ना, जो गार्डनर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो गार्डनर मीन्स जो बगीचा को देखभाल करते हैं, चौकीदार, मालिक, जो भी है। परमेश्वर पहले जैसे अभी नहीं करने वाला है, मतलब ये दाखलता को बढ़ने के लिए जो कुछ परमेश्वर कर रहे थे अभी नहीं करने वाला करके, ही इज नॉट गोइंग टू प्रून और डू एनीथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस grapes anymore. He was doing everything before, but now he is not going to do all that he was doing. And it shall be overgrown with briars and thorns. I will also command the clouds that there rain no rain upon it. Means what God is going to do? God will grow thorns. Thorns means कांटे। एक समय ये क्या है, दाखलता से, और उसका जो दाखलता का जो डालिया से भरा था, अभी किस चीज से भरेंगे, जो काटा और थॉर्न्स एंड थिसल्स जो जंगली झाड़ियों से भर जाएंगे, और बारिश भी उधर नहीं होगा। सो नाउ इंस्टेड ऑफ वाइन ब्रांचेस एंड दिस once upon a time it was filled with wine and wine branches and the fruits, but now it will be filled with thorns and wild bushes. And God also will stop rain over this garden. Means God is going to fully remove and destroy this garden. It is about the old Israel, the people who rebelled against him. अभी ये दाखलता का वाटिका के बारे में, बारी के बारे में बोलने के बाद ये कौन है करके 7 आयत में बोल रहा है। आफ्टर सिंगिंग दिस सॉन्ग ऑफ वाइनयार्ड, about the destruction of this vineyard which bore wild grapes, God is telling, who is this vineyard? It is Israel and Judah. In verse 7 it is written, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. ये परमेश्वर का घराना जो इसराइल है, ये दाखलता, एंड द पीपल ऑफ जूडा, ये यहूदी लोग है, ये दाखलता। इट इज द पीपल ऑफ जूडा एंड द हाउस ऑफ इसराइल. This garden of this vineyard refers to house of Israel and people of Judah, and God is going to remove them from his presence. This is talking about exile. So God is going to destroy and remove these people, but so we will be very sad. So the story is over. God has told a lot of promises to Abraham, Isaac and Jacob, to David and lot of his saints. God has given lot of promises, and he has a plan and purpose for these people. So did the story end? No, God is bringing a new beginning from old Israel. Old Israel, the rebellious people, the disobedient people, is removed, and God is bringing a new beginning through his servant, about which we read in Isaiah chapter 53 verse 2. Somebody please read Isaiah chapter 53 verse 2. परमेश्वर अपना जो दाखलता का जो बारी को नष्ट करते हुए उसके बीच में से एक नया दाखलता को क्या है, उगने देते हैं, उत्पन्न कर रहा है। उसके बारे में लिखा है यशायाह नबी की किताब 53 का
2. क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान हुआ जो निर्जल भूमि में फूट निकले। बस यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है. We all know that Isaiah chapter 53 is about Jesus Christ. It is a prophecy about Jesus Christ. So Jesus Christ is compared to what? In English it is written, for he grew up before him like a young plant. हिंदी में अच्छा से लिखा है, क्या है? यीशु मसीह किसके जैसा है? किस चीज के जैसा है? पढ़ो 2 आयत. क्योंकि वह उसके साथ अंकुर के समान अंकुर के समान और अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले. वो ऐसी जड़ के समान है निर्जल भूमि में. क्या है ये निर्जल भूमि? हम 5 अध्याय में देखा. परमेश्वर अपना दाख की बारी को नष्ट किया और उसको निर्जल भूमि बनाया. बारिश भी रोक दिया. अभी वो एक क्या है? सूखी भूमि तरह पड़ा है. ये कौन पढ़ रहा है? इधर तक आ रहा है आवाज. तो अभी इस्राएल एक निर्जल भूमि समान बन गया. एक क्या है? बर्बादी जमीन जैसे. नाउ इस्राएल इन चैप्टर 5 इज लाइक ए वेस्ट लैंड, a dry land where there is no content of water. But from that land, which is the people of Israel, God is bringing a new wine, which is Lord Jesus Christ. So Jesus Christ is the new wine. And Jesus came to this earth, and in New Testament, John chapter 15, what is this? I am the I am the ट्रू वाइन. नहीं पढ़ा? 15 यूहन्ना 15 का 1 से लेकर सच्ची दाखलता मैं हूं. ये कहां से आया दाखलता? यशायाह नबी की किताब से. परमेश्वर का दाखलता जो इस्राएल है हार गया. परमेश्वर के लिए अच्छा फल लाने में लोग हार गया. अभी जो असली और सच्चे दाखलता अभी कौन है? परमेश्वर एक नया दाखलता, नया नहीं, वो पुराना काल से है, पर अभी इस्राएल के जगह में या इस्राएल के जगह में इस्राएल को प्रतिनिधित्व करते हुए एक नया इस्राएल को परमेश्वर आरंभ कर रहा है. किसमें? यीशु मसीह में. तो सच्चे दाखलता मैं हूं. जो कोई मुझ में वास करता है, मतलब जो कोई यीशु मसीह में है, वो भी इस दाखलता के साथ जुड़ा है. वो यहूदी हो, यूनानी हो, वो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, जाति अन्य जाति के लोग भी है. जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस दाखलता का, परमेश्वर का इस दाख की बारी का भाग है. जो डालियां मुझ पर बनी रहता है, पिता उसको क्या है? छांटता है. उसको बढ़ने के लिए जो कुछ करना है करता है. जो कोई मेरा आज्ञाओं को मानते हैं, वो मुझ पे बना रहता है. तो नया नियम में, पुराना नियम में परमेश्वर का जो दाख की बारी कौन था? इस्राएल, यहूदी लोग. नया नियम में वो पूरे इस्राएल को प्रतिनिधित्व करते हुए एक नया इस्राएल को हम देखते हैं, वो यीशु मसीह में. और जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो नया इस्राएल है. समझ में आ गया? सो सन ऑफ मैन इन Daniel 7:13 is Israel. But coming to New Testament, it is Jesus Christ. इस्राएली लोग हार गया. परमेश्वर का पवित्र जन होने में इस्राएल लोग हार गया. Because in the vision of Daniel, it is told that the rule is for holy people. Israel failed to become holy ones of the Most High. So God is raising a holy one. Who is that? Jesus Christ. So Jesus is replacing the old Israel. Jesus is representing the new Israel. And whoever believes in him is a new Israel. Okay? एक और बात इस्राएल के बारे में और यीशु मसीह के बारे में तुलना करते हुए हम देखते हैं. यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय 4 से लेकर 6. We'll open the book of Isaiah chapter 1 verses 4 to 6. भाई, यह जाति कहाँ से कैसी बनी है?
वह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। बस. So when we read Isaiah chapter 1 verses 4 to 6, we see a picture of a what? Sick person. Sick person means from head to toe. सिर से लेकर पाँव तक पूरा बीमार हुआ या कोड़ों से घायल से भरा हुआ एक व्यक्ति का चित्र देखते हैं। वो क्या है? What is this wounds? What is this all this sickness that this person has? It is the sin of Israel. इसराइल को एक बीमार व्यक्ति से तुलना किया है। इसराइल लोगों का पाप एक बीमारी के रूप में बताया गया है। इसराइल का हालत एक क्या है? चिन्ह के द्वारा क्या किस तस्वीर से बताया गया है? एक बीमार व्यक्ति जैसा है इसराइल। जैसे सिर से लेकर पांव तक पूरा एक शरीर में, किसी का शरीर में बीमार घायल से भरा है, पूरा घाव है, मतलब घायल से भरा है। वुंड मतलब घायल है ना, घाव से भरा है, और क्या है? ब्लीडिंग हो रहा है, पूरा खून बह रहा है शरीर। ऐसा एक चित्र है आत्मिक रूप में इसराइल का, पाप से भरा हुआ जाति। उसको कोई भी मरहम पट्टी नहीं लगाया। मरहम पट्टी लगाने के लिए किसके हाथ में दिया था? कौन सेवा करना है इसको? याजक लोग, भविष्यवक्ता लोग, जो सेवा करना है उन लोग सही से सेवा। Israel is portrayed, pictured like a sick person. This person is sick from head to toe, full of wounds and bleeding, and no one is there to put bandage, to give medicine and treatment. So this shows the sin, the depth of the sin of Israel. We see similar picture in Isaiah 53 also. There is another person in Isaiah 53 whose body is full of wounds and bruises. We'll read that. Isaiah chapter 52:14. Isaiah chapter 52:14. As many were astonished at you, his appearance was so Marred. Beyond human's semblance. Yeah, someone can read in Hindi. चौथा 52 का चौथा। जिससे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, हाँ, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सामना जाना पड़ा। उसका रूप कितना बिगड़ा था? उसको देखते समय एक मनुष्य है करके भी नहीं पहचान सकते। इतना बिगड़ा हुआ एक रूप। ऐसा ही एक रूप पहला अध्याय में इसराइल के बारे में देखा, और उसी भाषा में किसके बारे में बताया गया है? यीशु मसीह के बारे में बताया। इसराइल का जगह ले रहा है। उनका जो पाप के दंड जो उनके ऊपर आना है, वो कौन झेल रहा है? यीशु मसीह। सो इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ आइज़ाया देयर इज a sick person. We cannot recognize him as a man or a person because it is full of wound and bleeding. Jesus Christ is also told in the same picture. Jesus Christ is also described in the same way because Jesus is taking the place of Israel. Jesus is bearing the punishment of the sins of Israel. यीशु मसीह इसराइल का जगह ले रहा है। इसराइल के ऊपर जो दंड आना है वो किसके ऊपर ले रहा है? इसराइल का प्रतिनिधित्व करते हुए जो दंड, जो सजा इसराइल को मिलना है उनके पापों के कारण, वो किसके ऊपर आ रहा है? यीशु मसीह के ऊपर।
We'll read 53 2 and 3. 53 का 2 and 3. क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते हैं, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो हम तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का ताग्या हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और रोग से उसका, जैसे हम पहला अध्याय में देखा। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो हम तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य न जाना, उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। बस 53 का 4 आयत में और 5 आयत में इस व्यक्ति का खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमारा क्या है? रोगों को वो अपने ऊपर, उसका मतलब क्या है? वो अक्षरिक रूप में जो रोग है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। ये बीमारी कौन सा बीमारी है? पहला अध्याय के अनुसार ये बीमारी क्या है? पाप है। यीशु मसीह इस्राएली लोगों को जो बीमारी, जो पाप को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया, उसका सजा को अपने ऊपर ले लिया और लोगों को क्या किया? बचाया सजा से, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होने से, परमेश्वर का दंड से। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस्राएल को क्या किया? इस्राएल का जगह ले लिया उस दंड पाने में और इस्राएल को क्या किया? आजाद कर दिया। तो इस्राएल का जगह ले रहा है कौन? मसीहा, यीशु मसीह। तो बहुत सारे ऐसे भाग है, यीशु मसीह किसका जगह ले रहा है? इस्राएल का जगह, इस्राएल को प्रतिनिधित्व करते हुए हम देखते हैं एक नया इस्राएल के रूप में, एक नया शुरुआत के रूप में यीशु मसीह का इस धरती का जन्म हम देखते हैं। इस्राएल का कहानी देखते समय when we see the history of Israel, we see God is calling them out of Egypt and they are crossing the Red Sea and they are coming to the wilderness. Jesus is also presented in gospel in the same way. यीशु मसीह, इस्राएल के बारे में हम देखते हैं, उनका इतिहास हम जब जानते समय, इस्राएल को परमेश्वर कहाँ से बुलाया? इजिप्ट, मिस्र से बुलाया। उन लोग लाल समुद्र पार किया और जंगल में पहुंचा। इसी तरह यीशु मसीह का कहानी भी कहाँ प्रस्तुत किया है? मत्ती रचित सुसमाचार में विशेष करके प्रस्तुत किया है। यीशु मसीह हेरोदा का डर के कारण यीशु मसीह को लेकर माँ बाप कहाँ गया? इजिप्ट में गया। और जब वापस आया, होशे नबी का किताब का भविष्यवाणी उधर लिखकर बताया, मैं अपना बेटे को मिस्र से बुलाया। जो आयतें इस्राएल के लिए इस्तेमाल किया है वो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया है? यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा अध्याय में यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है। जैसे इस्राएली लोग लाल समुद्र से होकर निकला या लाल समुद्र से होकर गया, पौलुस क्या बोलता है? ये नया नियम का बपतिस्मा का पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय में जो इस्राएली लोग का लाल समुद्र पार करना नया नियम का बपतिस्मा के साथ तुलना किया है। कौन? पौलुस। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना और बपतिस्मा लेकर बाहर आना, ये लाल समुद्र पार करने का तुलना किया गया है मत्ती। और उसके बाद यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। तो इस्राएली लोग मिस्र से निकला, लाल समुद्र से होकर कहा? जंगल में पहुंचा। वैसे यीशु मसीह का कहानी का शुरुआत भी कैसे? वो इस्राएल का शुरुआत है। यीशु मसीह का कहानी का शुरुआत कैसे? मिस्र से बुलाया, हाँ, पानी में बपतिस्मा और जंगल में परीक्षा।
तो इसराइल का इतिहास कैसे शुरू होता है, वैसे यीशु मसीह का कहानी भी मत्ती रचित सुसमाचार में शुरू किया गया। मतलब यीशु मसीह है नया जो इसराइल। इन द बुक ऑफ मैथ्यू द स्टोरी ऑफ जीसस इज नरेटेड इन द सेम वे द हिस्ट्री ऑफ Israel begins. In the Old Testament, the story of Israel begins with God calling them out of Egypt. God is bringing Israel out of Egypt, and Israel is crossing the Red Sea and going to the wilderness. In the same way, the beginning of the story of Jesus is also narrated. Jesus, when the parents, Joseph and Mary, took Jesus to Egypt because they feared Herod, and when they came back, Matthew is quoting the prophecy of Isaiah, I have called my son out of Egypt. So Jesus is also told in that way. Jesus is also called out of Egypt. I am calling my son out of. So in Hosea, the son of God is Israel. For Matthew, the son of God is Jesus Christ. यीशु मसीह इसराइल का जगह ले रहा है, एक नया इसराइल. Jesus is replacing Israel, and Jesus is the new Israel here. And after that, Jesus is taking back baptism. It is like going through the Red Sea, and Israel reached wilderness. After baptism, Jesus is also going to wilderness. The story of Jesus is narrated or begins in the same way the story of Israel is beginning. इसराइल का कहानी और इतिहास जैसे बताया गया है शुरुआत में, उसी तरह यीशु मसीह का कहानी भी बताया गया है. तो जीसस इज द न्यू इसराइल. जीसस इज द सन ऑफ मैन और सन ऑफ गॉड. So that's why in Old Testament, Son of God is Israel, Son of Man is Israel, everything is Israel. The true vine is Israel. And coming to New Testament, Jesus is taking all those things for himself, because Jesus is the new beginning, the new creation, the new Israel, the Son of God, the Son of Man, who is going to fulfill all the purposes that God has given to इसराइल. परमेश्वर का योजना पूरी करने में इसराइल हार गया. अभी जो नया इसराइल है, जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर का जो मनुष्य का पुत्र, जो यीशु मसीह है, वो इसराइल के लिए जो कुछ परमेश्वर ने योजना किया था, वो कौन पूरा करने वाला है? जो नया इसराइल, यीशु मसीह. Whatever the Lord has planned and purposed for Israel, Israel failed to fulfill that. But God is going to fulfill all those plans and promises and purpose through this new Israel, his son Jesus Christ. So this is the change happening from Old Testament to the, तो Old Testament से, पुराना नियम से नया नियम में आते समय ये बदलाव आ रहा है. Okay? So नया नियम में, when the New Testament begins, we will hear this: do not be proud by saying that you are children of Abraham. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर क्या बोला? हम अब्राहम का संतान है करके घमंड. इन पत्थरों से अब्राहम के लिए, संतान को बनाने के लिए, मतलब अक्षरिक रूप में अब्राहम का संतान कहलाने में ज्यादा घमंड, वो जमाना बीत गया. अभी जो कोई मसीह पर विश्वास करते वो है सही इसराइल. समझ गया? So now after the coming of Jesus, the original descendants of Abraham, the children of Abraham, cannot take pride in saying that we are the children of Abraham. अब्राहम के संतान अभी यीशु मसीह आने के बाद ये कहकर घमंड नहीं कर सकते हम अब्राहम का संतान है. नहीं, जो नया इसराइल कौन है? यीशु मसीह. जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते वो है अभी परमेश्वर का जन, परमेश्वर का लोग. इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में क्या किया है, क्या बताया है? जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको क्या अधिकार दिया? परमेश्वर का संतान होने का. पुराना नियम में कौन था परमेश्वर का संतान? इसराइल. किसी और को वो हक नहीं था. पर नया नियम में यीशु मसीह का आने के बाद नया इसराइल कौन है? जो कोई, जितनों ने, चाहे यहूदी हो या
अन्य जाति हो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सारे लोगों को एक जैसे परमेश्वर का संतान बनने का तो ये है बदलाव। तो नया इस्राएल सिर्फ यहूदियों से नहीं बना, यहूदी भी है, यूनानी भी है, मालिक भी है, गुलाम भी है, स्त्री भी है, सारे लोग, दुनिया के जितने भी लोग हैं, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो नया इस्राएल में है। जो मसीह में है वो नया इस्राएल है। इसलिए so when we understand this, that those who are in Christ, they are the true Israel. In Galatians chapter 4, Paul says that Jesus is the promised son. Jesus is the promise, and those who believe in the promised son, the promised heir, offspring, the blessing of Abraham will, if Gentiles believe in Jesus, the blessing of Abraham will come to Gentiles through Jesus Christ. So those who believe in Jesus, they are the children of Abraham. It is not through literally becoming the children. अक्षरिक रूप में जो अब्राहम का संतान, वो नहीं है अभी अब्राहम का संतान। अब्राहम का विश्वास जो रखता है, जो लोग अब्राहम जैसा विश्वास करते हैं, वो है अब्राहम का संतान। अब्राहम का असली संतान यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो है अभी यीशु मसीह का, अब्राहम का संतान। So when we connect this with Daniel 7:13, in Daniel, when this vision was told, it is about Jews, it is about Israel. Son of Man is Israel, the holy people of God, but Israel failed. Israel failed before God. So now who is the Son of Man? Jesus Christ. And in Jesus Christ we are also included. हम जो मसीह में है, हम भी यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। In New Testament we have so many words that says we will also reign with Christ. We will also rule with Christ. Means इसराइल का जगह में कौन आ गया? मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया, और यीशु मसीह में जो है हम भी उनका पवित्र जन है। तो यीशु मसीह में जितने लोग हैं वो सारे इस सन ऑफ मैन में आ गया। जो सिंबल सन ऑफ मैन, द सिंबल सन ऑफ मैन is the symbol for Jesus Christ in the New Testament. In the Old Testament it is the Jewish people, the holy people of God. Jewish people failed to fulfill the plans and purposes of the Lord, the calling of the Lord. So God has brought a new vine, the new Israel, that is Jesus Christ. And those who believe in Him also is in Jesus Christ. So who is going to rule the fifth kingdom? It is Jesus and His followers. Who are going to rule? Jesus and His. It is not only the Jews. Whoever follows Jesus, whoever believes Jesus, whether it is Jew or Gentile, whether it is a man or woman, whether it is a slave or master, anyone who is in Christ, they will rule, they will receive the kingdom from the Ancient of Days. परमेश्वर पिता से यीशु मसीह वो राज्य को प्राप्त करेगा जब ये परमेश्वर जो इस इंसान के सारे साम्राज्य और राज्यों को जब खत्म करेंगे, यीशु मसीह राज्य को पाएगा। उसके साथ कौन भी होगा? यीशु मसीह का चेले भी, यीशु मसीह में जो विश्वास किया, जो परमेश्वर के बच्चे, वो भी यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए। वो सिर्फ यहूदी नहीं, जो कोई इस पर विश्वास करता है। तो उसके बारे में हम भी यीशु मसीह के साथ राज करेंगे, उसके बारे में कुछ आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 2:12, 2 Timothy, we will read some verses which says we also rule along with Christ. 2 Timothy chapter 2 verse 12. In order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in righteousness. दूसरा तिमोथी 2:12। यदि हम धीरज रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। क्या करेंगे? अगर हम यीशु मसीह के साथ धीरज रखें या दुख सहेंगे तो यीशु मसीह के साथ राज भी करेंगे।
Jesus suffered when he came to earth. So we are also suffering on the earth, but there will come a time that Jesus will rule this world. That time we also will rule or reign with Jesus. That is the promise that we have. So we also will be suffering like Jesus while he was on earth. हम भी यीशु मसीह जैसे दुख उठाएंगे इस धरती पर, इस दुनिया पर एक दुनिया, नया दुनिया आने वाला है। यीशु मसीह राज करेंगे और उसके साथ हम भी, there is a new age, new world coming, but Jesus is going to rule the entire world and we are also going to rule with him. Only one condition, we have to suffer here with him. Then only we will rule with him there in the new kingdom. We will read Revelation chapter 20 verse 4 to 6. Revelation chapter 20 verse 4 to 6. प्रकाशित वाक्य 20 का 4 से 6. फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। बस इधर क्या लिखा है? एक विशेष प्रकार के लोगों के बाद, there is a special group of people told in this chapter who, what is the specialty of these people? These people, they suffered on this earth. The Antichrist, the beast, was torturing them. Because of the beast, they were suffering. But they did not compromise. समझौता नहीं किया. So these people, about these people it is told, they will rule with Christ for 1000 years. जो इस पशु के साथ लड़ाई किया और परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, उन लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष क्या करेंगे? राज करेंगे करके लिखा है। तो परमेश्वर के पवित्र लोग भी यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। इट इज रिटन, द फेथफुल पीपल हु वाज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द बीस्ट, हु वाज सफरिंग अंडर बीस्ट, they will reign, rule with the Christ in the coming kingdom of God. 5:10, Revelation 5:10, 5 का 10 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 5 का 10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक। इसराइल के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया निर्गमन में, इसराइल को याजकों का राज्य और पवित्र लोग, पवित्र जन करके बुलाया था। उसी शब्द किसको बुला रहा है? यीशु मसीह का विश्वासियों को, यीशु मसीह के चेले लोगों को क्या बुला रहा है? राज्य और याजक। हम जो नया नियम का विश्वासी लोग, जो कलीसिया है परमेश्वर के लिए अभी याजक और राज्य। सो इन ओल्ड टेस्टमेंट Israel was called as holy nation, the priestly kingdom and holy nation. But in Revelation, it is the followers of the Lord, which is who are called this priestly kingdom, the priestly nation, the holy nation. It is called for the church, the people who believe in the Lord Jesus. They will rule. Revelation 3:21, प्रकाशित वाक्य 3 का 21, Revelation 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो कलीसिया के लिए यीशु मसीह ये संदेश दे रहा है, जो जय पाएगा, जयवंत होगा, उसका क्या इनाम मिलेगा, क्या प्रतिफल मिलेगा? यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठ के यीशु मसीह के साथ राज करने का प्रतिफल कलीसिया को, जो जयवंत पाएंगे उनको ये प्रतिफल है, यीशु मसीह के साथ उन लोग राज्य करेगा। दिस इज ए रिवॉर्ड जीसस प्रॉमिस फॉर चर्च
in 3:21, those who overcome, they will sit with Christ on his throne, sit with Christ on his throne, and they will rule. They will have dominion with Christ. 1 Corinthians 6:3, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6:3, ये सारे आयतों में परमेश्वर और उनके लोग एक साथ राज करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उनके लोग भी साथ मिलकर राज करेंगे, हम भी राज करेंगे करके लिखा हुआ आयतों को हम पढ़ रहा है। पहला कुरिन्थी 6:3, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तू नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी कौन न्याय करेगा? We, when Christ judged the angels, we will, his people, we also will with him judge angels. स्वर्गदूतों को भी हम क्या करेंगे? न्याय करेंगे यीशु मसीह के साथ। क्या तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करे? बस पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदार्थी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की रीत प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। बस जो कुछ इस्राएल के बारे में निर्गमन 19:5 और 6 में बताया गया है, वो अभी नया नियम का कलीसिया के बारे में बताया है। इस्राएल को निर्गमन 19 में क्या बुलाया? याजकों का राज और पवित्र जन, होली नेशन, priestly kingdom and holy nation. Israel was called priestly kingdom and holy nation in Exodus 19:5 and 6. The same thing is called for the church in New Testament. What all are the name given for the church in 1 Peter 2:9? क्या है? याजकों का, someone please read in English. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials. 1 Peter 2:9. But you are the chosen race, a royal chosen race. Chosen race means चुना हुआ वंश। chosen generation, चुना हुआ एक वंश है, चुना हुआ एक लोग है। सेकेंड वर्ड रॉयल priesthood. रॉयल मतलब राज पद्दारी। सो राज पद्दारी याजकों का समूह। रॉयल priesthood मीन्स इसराइल को बुलाया याजकों का राज और होली नेशन। याजकों का राज इधर क्या है? रॉयल priesthood. रॉयल मतलब राजा, राजा और राज के संबंधित एक शब्द है रॉयल। रॉयल priesthood, राज पदधारी याजकों का वंश। जो कुछ इसराइल को नाम दिया है वो अभी नया इसराइल कौन है? यीशु मसीह, और यीशु मसीह में जो हम है। सो द न्यू इसराइल इज ऑल्सो गिवन द सेम नेम, रॉयल priesthood. And we are called from darkness to light to proclaim the excellencies of the one who called us. उस परमेश्वर का गुण का घोषणा करने के लिए हमें, जैसे इसराइल को परमेश्वर को प्रकट करने के लिए दूसरे दुनिया के सामने, लोगों के सामने इसराइल को क्यों रखा? परमेश्वर का महिमा को प्रकट करने के लिए। जैसे हमें भी इस दुनिया में रखा है परमेश्वर का गुण का घोषणा करने के लिए। हम भी अंधकार से ज्योति में, हम भी परमेश्वर का एक निज प्रजा है। जैसे इसराइल के बारे में निज धन करके बुलाया, हम भी कौन है? निज धन है, नया इसराइल हम है। सो जीसस एंड वी हैव रिप्लेस्ड द ओल्ड इसराइल। जो पुराना इसराइल को यीशु मसीह और यीशु मसीह में जो विश्वास कर रहे हैं, हम उसको क्या किया? रिप्लेस किया। उसके जगह में कौन आ गया? यीशु मसीह और उसमें जो विश्वास करते हैं। So the same words, the same names that is used for Israel is used for the New Testament church.
So we are his people who is going to rule with Christ in the coming kingdom. We will rule with him forever and ever. One more verse. Romans chapter 8 verse 17. रोमियों के पत्री 8 का 17. And if the children that hear of God and join here with Christ. Yes, बस. और यह संतान ही जो वारिस भी वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह की संग वारिस है। तो अगर हम परमेश्वर का संतान है तो हम वारिस भी है। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए क्या है, विरासत देते हैं, बच्चे माँ बाप का वारिस बनता है। माँ बाप के पास जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, उसका वारिस कौन बनता है? बच्चे। जैसे इस दुनिया में जैसा होता है, हम भी कौन है? अगर हम परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर के पास जो कुछ है उसका वारिस कौन है? हम है। असली में वारिस कौन है? परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह है। और जो लोग यीशु मसीह में है, हम कौन है? यीशु मसीह का भाई बहन जैसा है। हम भी यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का संतान है। तो असली वारिस यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह का भाई बहन जैसे हैं। तब हम भी यीशु मसीह के संग परमेश्वर का वारिस, वी आर heirs and co-heirs with Christ. हम परमेश्वर का वारिस है, यीशु मसीह का संग, यीशु मसीह के संग। यीशु मसीह है असली वारिस और हम भी उस वारिस में या उस विरासत में हम भी भाग, हमारा भी एक भाग है, क्योंकि हम यीशु मसीह में है। तो हम यीशु मसीह में है और हम परमेश्वर का वारिस है। यीशु मसीह के साथ हम भी राज करेंगे। सो वी who are in Christ, we are the heirs. Heirs means waris. We are the heirs of God and co-heirs with Christ. We are brothers of Christ. So we also have a portion in the what all the Father has. So is it clear? So we see the Son of Man in Daniel 7:13, who is coming in clouds. What is written in 7:13? Read. The Son of Man. In Daniel it is Israel. Israel failed. So Jesus Christ and we are the Son of Man. Jesus Christ is the Son of Man, and in Him we are the Son of Man. Jesus Christ is going to rule this earth forever and ever. We are also going to rule with Him. The holy people of God. We are that. So Jesus Christ, the Son of Man, is told like coming on clouds. Please read that 7:13, Daniel 7:13. I saw in the night vision, and behold with the cloud of heaven. Behold with the clouds of heaven. Who is coming? Son of Man. There came one like a son of man. तो वो बादलों पर आ रहा है, मतलब बादलों में या बादलों के साथ। इसी बात को नया नियम में कई जगहों में लिखा है। किसके संबंधित? यीशु मसीह के। In Daniel, in vision, Son of Man is coming with clouds. The same picture is given in so many different places in New Testament, especially in the Gospels. We'll read some of these verses and we'll end the class. First portion, Matthew 26:64. मत्ती रची सुसमाचार 26 का 64. Jesus said to him, "It is as you said. Nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the cloud of heaven." Yes. हिंदी में पढ़िए। मत्ती 26 का 64. यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। So which is this clouds? It is the vision of Daniel. We have to understand this verse in the background of the vision of Daniel's. Coming on clouds, that means clouds is a symbol of the presence of God. From Exodus we know that the pillar of cloud means the presence of God. उस बादल किस चीज का एक सिंबल है, एक निशाना है? परमेश्वर का उपस्थिति का।
निर्गमन की किताब में जो बादल का खंभा क्या था? परमेश्वर का उपस्थिति था। जब उस मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर का उपस्थिति उतरा, वो क्या है? बादल से भर गया। जो नया मंदिर जो सुलेमान ने बनाया, उसका जो पहला प्रार्थना जब सुलेमान किया, वो बादल से जैसा भर गया, याजक लोग उसके अंदर। तो बादल परमेश्वर का उपस्थिति का एक चिन्ह है। सो सन ऑफ मैन इज कमिंग इन क्लाउड्स मीन्स दानियल की किताब में ये अधिकार पाने के लिए आ रहा है, राज करने के लिए आ रहा है। जब बादलों पर आते समय दानियल में क्या लिखा है? सन ऑफ मैन क्या करने के लिए आ रहा है? राज पाने के लिए और राज करने के लिए आ रहा है। इसी बात को यीशु मसीह अपने लिए दोहरा रहा है। कहाँ? जब यीशु मसीह को अदालत में बुला गया, क्रूसीकरण के पहले यीशु मसीह को जब अदालत में बुलाया, महायाजक के सामने क्या बोल रहा है? यीशु मसीह कौन है, क्या है करके जो सवाल आया, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम क्या देखोगे? मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिने भाग में बैठा हुए देखेंगे और बादलों पर। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में, जिस मनुष्य के पुत्र के बारे में दानियल ने देखा, वो कौन है? मैं हूं, जो राज करने वाला है इस धरती को। परमेश्वर का जो वारिस, पूरे दुनिया, आकाश और पृथ्वी का राजा कौन है? मैं हूं करके कौन बोल रहा है? इट इज नॉट जस्ट ये सिर्फ यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में नहीं बोल रहा। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, उससे भी गहरा है। मतलब ये सिर्फ सेकंड कमिंग के बारे में नहीं। दिस इज जस्ट नॉट अबाउट द सेकंड कमिंग, जीसस इज कमिंग ऑन क्लाउड्स, नो, दैट इज अ लिटिल पार्ट। The deeper meaning is that Jesus is claiming when he is telling to the high priest that you will see the Son of Man sitting at the right hand of God and you will see him coming on the clouds. That means Jesus is claiming for himself, I am the Son of Man whom Daniel saw. I am the Son of Man in the vision of Daniel who received the kingdom from the Ancient of Days, who will rule forever and his kingdom will not एंड। यीशु मसीह अपने लिए ये बात कह रहा हूं महायाजक के सामने, जो प्राचीन के दानियल, मतलब उधर सीधे तौर पर बताया नहीं, पर यीशु मसीह कहने का मतलब ये है, जो दानियल जो दर्शन में जो मनुष्य के पुत्र के जैसे एक व्यक्ति को जो देखा, वो कौन है? जैसे उस मनुष्य के पुत्र जैसे वो व्यक्ति उस प्राचीन से अधिकार पाया और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए राज किया। मैं हूं वो राजा जो आने वाला है। तब गुस्सा आ गया किसको? महायाजक को। फिर क्या है? यीशु मसीह को क्या है? और आगे इसको कैसे किसी ना किसी तरीके से इसको सजा, क्योंकि उसको सह नहीं पा रहे। ये ऐसा उनके सामने, उनका नजर में ये कौन है? एक बढ़ाई है। बढ़ाई कौन है? कारपेंटर, जो लकड़ी में काम करता है या वुड में। ये बोल रहे मैं दुनिया का राजा हूं। नहीं, उन लोग नहीं मान सकते। They cannot accept Jesus. For them, he is a carpenter, and this person is telling, "Yeah, I am the Son of Man" in the Danielic vision. So they cannot accept it. They became more angry and they wanted to kill him. In some gospel, it is told that the priest tore his clothes because he is ये परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं। मार्क चैप्टर 14, मरकुस रजिस्टर समाचार 14 का 61 and 62। मार्क चैप्टर 14 61 and 62। But he kept silent and answered nothing. Again the high priest asked him, saying to him, You are the Christ, the Son of the Blessed. And Jesus said, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the cloud of heaven. इधर भी वही बात बताया है, मरकुस में भी यही बात है। यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र बादलों पर आते हुए तुम लोग देखेंगे। ये दानियल का विजन के बारे में, दानियल के विजन में सन ऑफ मैन के बारे में जो बताया वो मैं हूं करके बोल रहा, जो सारे दुनिया को राज करने वाला है। रेवलेशन 1:7, प्रकाशित वाक्य 1 का 7। इसका पहले जो आयत मैंने बताया मरकुस 14 का
61, 62. Mark 14, verses 61, 62. Now you have to read Revelation 1:7. Behold, वह हाँ, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है देखो वो बादलों के साथ, आने वाला है मतलब यीशु मसीह राज करने के लिए, जैसे दानियल के दर्शन में देखा, वो राज करने के लिए आ रहा है बादलों पर, राज पाने के लिए और राज करने के लिए। जैसे यीशु मसीह अपने लिए वो उस विजन को अपनाते हुए क्या बोल रहा है, देखो मैं देखो वो बादलों पर आ रहा है। ये दानियल का विजन से, तो ये विजन कितना महत्वपूर्ण है, पूरा नया नियम इस विजन से भरा है। Acts chapter 1:11, Acts. The entire New Testament is filled with this vision of Son of Man coming on clouds, which is Jesus receiving the kingdom from the Father, and we will also rule with him forever and ever. Acts chapter 1:11. प्रेरितों के काम 1:11. और उसने कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यदि यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। Now when he had spoken this thing, which day he was taken up, and a cloud received him up. तो बादलों में उठाया गया। इंग्लिश में, हिंदी में शायद ऐसा नहीं है, बादलों में है, इंग्लिश में है, यीशु मसीह बादलों में उठाया गया। मतलब यीशु मसीह जब इस पुनरुद्धान के बाद चेले लोग को जब छोड़कर गया, कैसे उठाया गया? बादलों पर उठाया गया। और स्वर्गदूत क्या बोला? जैसे आप देखा, जैसे यीशु मसीह को बादलों पर उठाया गया, वैसे ही आते हुए तुम लोग, मीन्स जीसस इज गोइंग टू rule. That is the message. When Jesus was ascending, Jesus was taken into heaven after his death and resurrection. He was taken in clouds, and the angels were telling, why are you looking into the sky? Just like you saw him being taken in clouds, he will be coming back in clouds. Means he is going to come as king according to the vision of Daniel. So these are the words which says Jesus coming on clouds. और हमारे बारे में भी क्या लिखा? हम भी बादलों में, कहाँ लिखा है? पहले तस्सलुनीकियों का पत्री 5 का किसी को मिला? 5 का 16 नहीं, First Thessalonians chapter 5. Sorry, 4:13. पहला तस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय का 13 से लेकर। ये वही भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान सोच करो जिन्हें आशा नहीं। आगे पढ़ो। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ में आएगा। आगे पढ़ो। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, स्वयं वो से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा, उस समय लड़का और प्रधान स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। तो जैसे मनुष्य का पुत्र बादलों में आते हुए हम देखा, हम भी
अगर यीशु मसीह के आगमन में, दूसरे आगमन में अगर हम इधर जिंदा है तो हम भी बादलों पर यीशु मसीह को मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं बादलों पर उठाया लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? हम भी उसके साथ राज करने वाला है। हम भी परमेश्वर का राज का भाग है और यीशु मसीह के साथ हम भी हमेशा के लिए राज करने वाला है। So everybody understood? So we also will be lifted up in clouds. That doesn't mean that is not written to just say that we are going to travel through clouds. No, that is not the meaning. The meaning is, like the Son of Man received the authority, we are also going to partake, becoming partners in that authority. We are going to be with the Lord forever and ever. We also will partake. Partake means भाग लेना. Partake in the authority and rule of the Lord. तो इस वचन के साथ एक दूसरे को क्या करना है? शांति देना है। जो लोग इस दुनिया में क्या है, पीड़ित है, सताव से होकर गुजर रहे हैं, उनको क्या बोलकर शांति देना? यीशु मसीह आने वाला है। ये जो चौथे पशु का राज अभी खत्म होगा, परमेश्वर क्या करेंगे? उसको खत्म करके परमेश्वर अपना राज स्थापित करेगा। उस राज में कौन भी होगा? हम भी उसके साथ। इन बातों से क्या करना? एक दूसरे को तसल्ली देना, शांति देना। ठीक है? एनी डाउट? सो पॉल इज टेलिंग the Thessalonian believers to comfort each other with this verse, that Jesus comes, we also will be lifted to his presence in clouds. That means we are also going to rule with him. All the sufferings, persecutions and oppressions that we are facing in this world, that will be, God will put an end to our sufferings and we will reign with the Lord. Any doubts? When you don't ask any doubts, I am afraid. You can stop.